Hello students, I am Monica Sol from ME International School, Nayagaon. Today we will be doing the chapter 9th, Madam Rides the Bus from your book The First Flight. Yes, Madam Rides the Bus. ये कहानी एक 8-year-old girl की कहानी है. Let's see what she does. You know, she is a girl who is alone at home, and what she likes, she just her pastime is she comes to the gate of a house and she stands over there and she watches the people going here and there, and especially her best interest is to watch a bus going towards the town, from the village to the town. She always watches the bus going towards the town, and she watches how the passengers come down the bus and how they board the bus and what they do from that, how they buy the ticket, how the conductor talks to them. All that she watches from a gate, and she wishes that one day even I want to ride this bus. She is just 8 years old. Her mother is busy, like the time, afternoon time. The mother always sleeps around 1 o'clock to 4 o'clock. She sleeps at home. So that is the time where she stands alone near the gate and she watches these things. She is very interested in watching the bus going from here and there. Now let's see what is the story about. See, Wali's favorite hobby. Now what is Wali's favorite hobby? The girl's name, that 8-year girl's name is Wali. उसकी फेवरेट हॉबी क्या थी? देयर वॉज अ गर्ल. नाउ उसका पूरा नाम था वल्लई अम्मई. शी वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट. अब इतना बड़ा नाम था तो उसको वल्ली बुलाते थे शॉर्ट में. Now she was 8 years old. She was very curious about things. Standing in the front doorway of a house was her favorite pastime. She had no playmates. Watching the street gave her many new usual experiences. अब उसका जो पास टाइम था ना, डोरवे पे खड़ी होके घर के, और वो ये देखती थी कि बस कैसे आ रही है जा रही है. वो उसको बहुत अच्छा लगता था. वैसे भी इवन यू नो दैट 8 years old बच्चे, वो लोग कितने छोटे से होते हैं और उनका इंटरेस्ट ये वाला ही होता है कि बच्चा लोग क्या करें. एक प्लेमेट्स थे नहीं उसके साथ, कोई खेलने वाला था नहीं. उसकी मम्मी सो जाती थी, तो उस टाइम पीरियड में वो अकेली बोर होती थी, तो वो अपने गेट पे खड़ी होके ये वाली चीज़ें देखा करती थी. नाउ वॉचिंग द बस. सी, डे आफ्टर डे शी वॉच द बस दैट ट्रेवल्ड between her village and the nearest town. She wished to ride on that bus. This wish became stronger and stronger. She would stare at the people who got on or off the bus. She listened carefully the conversation between her neighbors who regularly used the bus. She picked up small details about the bus journey. The town was 6 miles from her village. The fare was 35 paise one way. To Wali, this amount seemed a fortune. The trip टू द टाउन टुक 45 मिनट्स. अब देखो उसने उसका ऑब्जर्वेशन देखो, उसने बस में जो है कैसे बस जाती है, बस कहाँ से आती है, बस के पैसे कितने हैं एंड कितना टाइम लेती है. लाइक इट टेक्स 45 मिनट्स. लाइक 1:45 को वो जो स्टार्ट होती है बस, वहाँ से 45 मिनट्स में वो टाउन पहुँच जाती है विलेज से. सो एवरीथिंग शी वॉज कैलकुलेटिंग. उसका प्लानिंग कुछ चल रही थी और वो देख रही थी जो भी उतरता था बस में से, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं वो सारा वो सुनती थी कि ये बस में ये लोग कैसे जाते हैं, कैसे बैठते हैं, टिकट कैसे लेते हैं, कितना टाइम लगता है. एवरीथिंग शी वॉज कैलकुलेटिंग इन हर माइंड. नाउ प्लान हर जर्नी. अब उसने एक दिन क्या करा, जब ये उसने सारी चीज़ें सुन ली और समझ ली, तो उसने एक प्लानिंग करी कि मैं इस बस में जाऊंगी. नाउ जस्ट सी, 8 year old, सिर्फ 8 साल की बच्ची, और वो क्या प्लान बना रही है कि मैं इस बस में ट्रैवल करूंगी. नाउ शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस. अब उसने क्या प्लान करा कि 1 बजे की बस में पकड़ूंगी. उसको पता है उसकी मम्मी सो जाती थी उस टाइम पे. शी वुड रीच द टाउन एट 1:45. शी कुड बी बैक home by about 2:45. She calculated and recalculated, planned and replanned. अब उसे सारा कैलकुलेशन बैठा लिया कि मैं 1 बजे की बस पकड़ूंगी, 45 मिनट्स में मैं टाउन जाके वापस विलेज आ जाऊंगी, है ना. 2:45 पे मैं घर पहुंच जाऊंगी, तो मम्मी को पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज मम्मी यूज्ड टू स्लीप अप टिल 4 o'clock, तो उनको पता भी नहीं चलेगा. सो शी वॉज कैलकुलेटिंग प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग्स उसके दिमाग में चल रही थी. अब एक दिन उसने ऐसा करा भी सही, उसने बस में जाना बिल्कुल डिसाइड कर लिया दैट आई वांट टू गो इन द बस. When Wali sighted the bus, she cried, "Stop, stop the bus, stop the bus." The bus slowed down. Still standing outside the bus, she told the conductor that she wanted to go to the town. She showed the money she had. The conductor stretched his hand to help her up. अब उसने क्या करा, रोका बस को और वहाँ पर बाहर खड़े होकर कंडक्टर से क्या बोला कि मुझे टाउन जाना है. एंड शी शोड द मनी, कि ये रहा टिकट के पैसे भी है मेरे पास, एंड आई वांट टू गो. अब कंडक्टर ने उसको हाथ दिया, छोटी सी बच्ची की उसको मैं
चढ़ा दूंगा बस के अंदर. बट वॉट शी डिड, वल्ली रिप्लाइड दैट शी कुड हेल्प अस हेल्प. वल्ली को ये चीज़ पसंद नहीं आई. वल्ली अपने आप को समझती थी कि मैं आई एम मेच्योर्ड इनफ टू सो आई कैन क्लाइम द बस. 8 साल की बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसने बोला कि नहीं नहीं मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. The conductor was fond of joking. He asked others to make way for the madam. अब कंडक्टर तो थोड़ा सा जोकिंग था, मजाकिया था. उसको तो ये चीज़ अच्छी लगी कि इसने हाथ मतलब मना कर दिया कि मैं खुद चढ़ सकती हूँ. तो उसने सब लोगों को बस में बोला अरे अरे जगह करो, मैडम आ रही हैं. उन्होंने उसको मजाक में बोला बच्ची को कि मैडम आ रही है. All the 6 or 7 passengers who were looking at Valli. She was overcome with shyness. अब सब लोग देखने लगे वल्ली को कि छोटी सी बच्ची आई, मैडम आई करके, तो सारे हंसने लग गए. तो वो बेचारी एकदम शर्मा गई. शी वॉज शाय. शी क्विकली वेंट टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. द कंडक्टर ब्लू हिज विसिल एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर. अब क्या हुआ देखो, जैसे ही वो एम्प्टी सीट में बैठी फटाफट उसने वो शर्म के मारे जल्दी से सीट पे बैठ गई, है ना. एंड फिर उसने कंडक्टर ने विसिल बजाई तो बस स्टार्ट हो गई. लुकिंग आउटसाइड नाउ, जब वो बस के अंदर बैठी, नाउ दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज ट्रैवलिंग ना फ्रॉम विलेज टू टाउन. तो जो बस के अंदर से जो सीनरी दिखते हैं बच्चों को वैसे भी अट्रैक्ट करते हैं. व्हेन यू वॉच फ्रॉम द विंडो यू सी सो मेनी थिंग्स आउटसाइड, सो वो बहुत अट्रैक्टिव थी. शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड. द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ कैनाल. बियॉन्ड इट शी कुड सी palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. Then she saw acres of green fields. An elderly person asked her to sit down. अब देखो ये सारी चीज़ें वो देख रही थी, उसको पहाड़, ग्रासलैंड्स, ब्लू स्काई, एवरीथिंग शी वॉज वॉचिंग एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. द थिंग विच शी हैड नॉट सीन, you know, first time she was seeing all these things. And suddenly one elderly person he came and what he was sitting next to her ना, तो उन्हें क्या बोला, बैठ जाओ. बिकॉज शी वॉज अ स्मॉल गर्ल, शी वॉज जस्ट 8 years old. तो उन्होंने बोला बैठ जाओ, नहीं तो लग जाएगी, बस ब्रेक करेगा तो आगे से लग जाती है ना बच्चों को. तो उन्होंने उसको बोला सिट डाउन. नाउ द कंडक्टर सेड जोकिंगली ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप गर्ल. अब उन्हें क्या वापस कंडक्टर ने जोकिंगली बोला कि अरे अरे इसको कुछ मत बोलो, ये तो बहुत बड़ी बच्ची है, ये छोटी बच्ची नहीं है, ये अपने आप को संभाल लेती है. वल्ली शॉर्ट बैक. अब वल्ली को फिर से गुस्सा आया कि कंडक्टर बार बार मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो उसको गुस्सा आया. आई एम नॉट अ मैडम. शी रिमाइंडेड द कंडक्टर दैट ही हैड नॉट गिवन हर द टिकट येट. ही आस्क्ड व्हाई शी वाज स्टैंडिंग व्हेन शी हैड पेड फॉर हर सीट. ही कॉल्ड हर अ चाइल्ड एंड आस्क्ड हर टू सिट डाउन. अब वापस उसने बोला एक तो मुझे बार बार मैडम मत बोलो. फिर उसने कंडक्टर को बोला कि मैं अभी तक आपने मुझे टिकट भी नहीं दिया, आप टिकट तो दो मुझे. तो उन्होंने बोला जब तुमने टिकट के पैसे, तुम टिकट ले रही हो तो तुम बैठ क्यों नहीं रही हो, सीट पे से बार बार खड़ी क्यों हो जाती हो. तो उन्होंने उसको वो बोला और उन्होंने बोला कि तुम छोटी बच्ची हो, गिर जाओगी, बैठ जाओ. वापस उसने वही वाली बात बोली. वल्ली सेड इरिटेबली आई एम नॉट अ चाइल्ड. अब वो क्या बोली, पहले तो मैडम भी उसको बोलना पसंद नहीं आ रहा था, फिर उसने बोला बच्चा मत बुलाओ. बोला कि मुझे बच्चा मत बुलाओ, मैं बच्चा नहीं हूँ. आई टेल यू आई एम 8 years old. ने बोला कि मैं 8 years old हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं. Valli finally sat down. An elderly woman came and sat beside her. Valli found the women absolutely repulsive. अब एक वो तो चले गए अंकल, अब एक ओल्ड लेडी आके बैठ गई. अब वो ओल्ड लेडी जो आके बैठी वो तो और भी उसको गंदी लगी, क्योंकि उसके मुंह में से वो बीटल सुपारी की स्मेल आ रही थी और वो ना तो थोड़ी सी उसको अच्छा नहीं लगा कि वो लेडी आके क्यों बैठी वहाँ पर. Now she had big hole in her ears and ugly earrings in them. अब उसके कान जो थे, कान में उसने बहुत बड़े बड़े होल थे और अगली इयरिंग्स ऐसे उसने पहन रखी थी. तो उसको वल्ली को पसंद नहीं आ रहा था कि मेरे पास क्यों आके बैठ गई. See, she could smell the betel nut the woman was chewing. She asked if Valli was traveling alone. She cut short the women as well as the conductor. अब वो लेडी भी उससे दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछने लगी, क्योंकि हर एक कोई बच्चे को अकेले दिखता है तो पूछता ही है ना. तो उन्होंने पूछा कि तुम अकेली हो क्या. तो उसको तो पसंद आता ही नहीं था वल्ली को किसी को जवाब देना. वो कंडक्टर को भी उसने चुप कर दिया, वो उनको आंटी को भी चुप कर दिया कि आप मेरे से बार बार कुछ मत पूछो, मुझे कुछ जवाब नहीं देना है. सो शी वॉज वल्ली विथ हर अनप्लेजेंट क्वेश्चन. शी आस्क्ड व्हाई वल्ली वॉज ट्रैवलिंग अलोन एंड इफ शी इवन न्यू वेयर शी वॉज गोइंग. वल्ली रिटॉर्टेड दैट शी नॉट ओनली बॉदर अबाउट हर, शी कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. अब उसको बार बार जब क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वल्ली को बड़ा गुस्सा आया. वल्ली ने बोला कि मैं ना अपने आप को संभाल सकती हूँ और आप मुझे ना ये जो फालतू जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो ना बार बार, डोंट आस्क मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ अलोन. ओके, सो शी टोल्ड दैट वे. नाउ सी, Valli's first journey came
after a careful and painstaking planning. She saved whatever stray coins came her way. Finally, she had saved a total of 60 पैसे. अब उसने 60 पैसे अपने जो घर में जो पैसे बचते थे ना उसके किसी भी चीज़ में, उसने टॉयज़ नहीं बाय करी, उसने अपने जो भी उसको अच्छा लग रहा था वो उसने परचेस नहीं करा, जस्ट शी वॉज सेविंग द कॉइन टू ट्रैवल इन द बस. तो वो चीज़ उसकी सफल हो गई. उसने 60 पैसे जो जमा करे थे वो उसके यहाँ पर काम आ रहे थे. अब शी रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन ऑफ लाइक बाइंग टॉयज, बलून्स एंड टू राइड मैरी गो राउंड. हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. हर मदर वुड नैप एवरी डे फ्रॉम 1 to 4. These 3 hours were for the excursions. अब सारी चीज़ उसकी प्लान थी और उसको ये भी पता था कि उसकी मदर 1 to 4 सोती है, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि पैसे भी जमा हो गए और अब मुझे सिर्फ प्लानिंग करनी है कि मैं किस टाइम बस में राइड लेने के लिए निकलूँ. तो उसने डिसाइड कर लिया था एंड शी ट्रेवल्ड फ्रॉम 1 o'clock. शी लेफ्ट इन द बस एंड शी रीच द town over there. Now the bus was rushing through small hamlets. Suddenly Valli clapped her hands. A young cow was running very fast right in the middle of the road. अब देखो धीरे धीरे वो बस आगे बढ़ रही है शहर की तरफ, टाउन की तरफ. And then suddenly Valli, छोटी बच्ची है तो वो खुशी में ताली बजाने लगी. Now she was clapping the hand. Why? Because she saw a small young cow which was running in front of the bus. बार बार जब बस का ड्राइवर उसमें हॉर्न बजाता ना तो वो और भागती, तो उसको that was fun for her. चाइल्ड इज़ वेरी हैप्पी टू सी सच थिंग्स ना, तो वो बहुत फनी लग रहा था उसको, तो वो हंसने लग गई और क्लैप करने लग गई. The driver sounded the horn loudly again and again. The more he honked, the more frightened the animal became. It was very funny to Valli. अब वो काऊ तो डर रही थी हॉन्क से, बट वो इसके लिए for Valli it was funny. उसको क्या लग रहा था काऊ मस्ती कर रही है रोड पे. Now she laughed until tears came in her eyes. अब वो इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे. Then they passed through a railroad crossing. Then it passed through a bus but well laid out shopping street. Bright looking shops, what glittered display of the clothes, such big crowds. अब उसने देखो बस जब निकली तो एक तो रेलवे क्रॉस उसने क्रॉसिंग करी, रेलवे ट्रैक, तो उसने रेलवे ट्रेन देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी, वो ड्रेस, फिर उसने जो रोड्स देखे, स्ट्रीट्स देखी, तो एवरीवेयर इट वाज डेकोरेटेड. द शॉप्स वर देयर, कलरफुल थिंग्स वर हैंगिंग ऑन द शॉप. वो सारी चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स शी सॉ व्हेन शी वाज एंटरिंग द टाउन. नाउ तो her destination had come. Her 30 पैसे who could take her only to this place. अब 30 पैसे जो थे वो तो सिर्फ टाउन तक पहुंचा रहे थे, एंड देन अगेन शी हैड टू पे 30 पैसा टू कम टू द विलेज. द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट ऑफ. वली रिप्लाइड दैट शी वाज गोइंग बैक ऑन द सेम बस. शी हैंडेड 30 पैसा कॉइन्स टू द कंडक्टर. अब उसने कंडक्टर ने को क्या थोड़ी पता था कि जस्ट बस में ट्रैवल करने आई है. कंडक्टर ने उसको बोला उतरो, टाउन आ गया. तो उसने बोला कि मुझे नहीं उतरना, मुझे वापस इस बस से विलेज जाना है, एंड शी हैंडेड ओवर द 30 पैसा टू द कंडक्टर. The conductor was surprised. Valli told him that she just felt like having a bus ride again. He was greatly amused. अब वली वो तो कंडक्टर एकदम शॉक्ड हो गया कि बस में ऐसे घूमने आई है क्या, उतर भी नहीं रही है. तो कंडक्टर ने उसको बोला, उसने बोला कि नहीं मुझे तो सिर्फ बस की राइड लेनी है, तो मैं तो बस में राइड करूँगी. नाउ ही वॉज ग्रेटली अम्यूज. ही आस्क्ड इफ शी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ कमिंग अलोन इन द बस. शी आंसर्ड दैट देयर वॉज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. ही वॉज रेडी टू ऑफर अ कोल्ड ड्रिंक टू हर. शी फर्मली सेड दैट शी वॉन्टेड ओनली हर टिकट एंड नथिंग एल्स. अब देखो उसने उसको बोला उससे कि तुम अकेली जा रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? तो उसने बोला कि इसमें डरने की क्या बात है. कंडक्टर ने सोचा कि तब इतना लंबा डिस्टेंस आई है, बच्ची है, तो उन्होंने ऑफर किया कि मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक ले लो. तो उसने बोला मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट गिव मी माई टिकट एंड आई एम कंफर्टेबल नाउ. तो नाउ वाली वॉज इन बोर्ड ड्यूरिंग हर रिटर्न जर्नी. अब जब रिटर्न हुए टाउन से विलेज, दैट टाइम शी वॉज नॉट बोर्ड, अगेन शी वॉज एंजॉइंग हर सेल्फ. She had the same excitement. Suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It had been struck by some fast moving vehicle. अब सबसे बुरी बात उसको जो रिटर्न जर्नी में लगी, वो उसने क्या देखा, वही काव जो उसके बस के आगे भाग रही थी इतनी फनी वे में और वो एंजॉय कर रही थी, while returning it was dead. some vehicle might have struck her and it was lying dead over there. So that was very bad for her. She was the same cow which she had seen before. When alive, she was a lovable, beautiful creature. Now she looked so horrible and frightening. Valli said, glued to her seat. The bus reached her village 3:40. अब वली को बहुत बुरा लगा ये इंसिडेंट देखे, फिर वो बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पे बैठ गई, and then she reached to the village.
Now at 3:40 she reached over there. Now when she reached home, she wished the conductor had hoped to see him again when Wali entered her house. अब वापस से वो जब घर में घुसी, then what happens? She found her mother awake and talking to one of her aunts. अब उसकी मम्मी तो उठ गई थी और वो एक आंटी आई हुई थी, उनसे बातें करने में लग रही थी. Now she was real chatterbox. अब वो जो आंटी आई थी ना, वो बहुत बोलती थी, बातें कर रही थी, चटर चटर, तो she was like a chatterbox. She was always talking. So her mother went on with her conversation. She opined that there were so many things in the world outside, they often couldn't understand them completely. अब वो लोग conversation में क्या बात कर रहे थे कि दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं ना, कभी कब क्या हो जाता है, we can't say. That conversation was going on between her mother and the aunt. Now suddenly उसमें क्या हुआ, they often couldn't understand. Then Wali agreed with her mother. She said that so many things were happening without their knowledge. Her aunt called her just a chit of a girl. She poked her nose in their conversation as though she were a grown lady. Wali smiled to herself but didn't want them to understand her smile. अब उसने ये चीज़ बोली तो वो एकदम शॉक्ड हो गए. उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है, मतलब ये लड़ती छोटी सी बच्ची कैसे अपनी बड़ों की बातों में आ रही है, वो भी अपने जैसे बोल रही है, मतलब कि हाँ दुनिया में क्या रखा है, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता. वो छोटी सी बच्ची, बिकॉज शी ट्रेवल्ड from village to town and she saw many things na. So now even she is in the discussion of that auntie and her mother. Thank you.